हेलो एवरीवन, वी वर स्टडिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस स्टडी की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो बॉन्डिंग है बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। लिगेंड्स को हम कंसीडर करते हैं पॉइंट चार्जेस की तरह, आयनाइंस के केस में और डाइपोल्स के केस में, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है the 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom or ion have same energy, that is they are degenerate. However, in a complex due to asymmetrical negative field of ligands, जो d orbitals होते हैं no more degenerate and split into two sets of orbitals. The pattern of splitting depend करता है upon the nature of crystal field. Octahedral environment में जो dx square, y square, dz square orbitals होते हैं which point towards the axis along the direction of ligand will experience more repulsion and will be raised in energy. And जो dxy, dyz और dzx orbitals होते हैं which are directed between the axis will be lowered in energy as compared to average energy in the spherical crystal field. Thus, octahedral complex में the degeneracy of 5d orbitals is partially removed due to ligand electron metal electron repulsion to yield 3 orbitals of lower energy T2g set and 2 orbitals of higher energy EG set. ठीक है, the splitting of the degenerate orbitals due to the presence of ligand in a definite geometry is known as crystal field splitting. And जो difference है energy का between two sets of degenerate orbitals as a result of crystal field splitting is known as crystal field stabilization energy. Crystal field stabilization energy. It is usually denoted by symbol delta O. The subscript O क्या है यहाँ पर? Octahedral. It is found that EG orbitals are 3/5 delta O above the average energy level and T2G orbitals are 2/5 delta O below the average energy level. ठीक है, देखिए ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो रही है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में। ठीक है, ये आपके एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इंक्रीज होगी। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मेटल है डी ऑर्बिटल्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, फ्री मेटल आयन, ये एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल की स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में, और ये स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में। तो ये बैरी सेंटर होता है इस तरीके से, ऊपर वाला होता है Eg, ठीक है, नीचे वाला है T2g, नीचे वाला है T2g और ऊपर वाला ऑर्बिटल हायर एनर्जी का जो है वो है Eg। ठीक है, T2g में है dxy, dyz, dzx, 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ठीक है, जो नीचे वाला लोअर वाला जो है लोअर एनर्जी वाला T2g जो सेट है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पर देखिए जो ऑर्बिटल्स है वो होते हैं 2/5 डेल्टा O। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसकी ये बीच की जो एनर्जी है वो है 3/5 डेल्टा O। ठीक, आगे देखते हैं। The magnitude of delta O depends upon the field produced by ligand and charge on the metal ion. The arrangement of ligands in a series in the order of increasing field ligand is called spectrochemical series. ये spectrochemical series है, यही ligands का arrangement होता है जिसमें increasing field strength में। ठीक है, I नेगेटिव में सबसे छोटा है, सबसे कम है field strength, फिर Br नेगेटिव, फिर SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O42 नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, NH3EN, CN नेगेटिव, CO. In D2 and D3 coordination entities, the D electron occupy करता है T2g orbital singly in accordance with Hund's rule. For D4 ions, the electronic config distribution depend करता है crystal field stabilization energy पर and pairing energy पर. The two options are, अगर देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वन ऑफ द ईजी ऑर्बिटल में।
ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है, हायर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है, ईजी ऑर्बिटल में एंटर करेगा अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2G3 EG1। लिगेंड्स फॉर विच, जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, उसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड एंड फॉर्म करता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। आगे देखिए, अगर डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, then it becomes more energetically favorable for the fourth electron to occupy a T2G orbital, lower energy orbital, with configuration हो जाएगी T2G4 EG0। दिस जो लिगेंड्स हैं जिसमें डेल्टा ओ स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं और वो फॉर्म करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में द डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग इन्वर्टेड होती है एंड स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन अ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ये देखिए एनर्जी है, ये डी ऑर्बिटल्स फ्री आयंस है, मेटल डी ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। ये 3/5 है, यहाँ पर ये 3/5 है डेल्टा टी, और ये 2/5 है, ये टेट्राहेड्रल का है ये, ठीक है। वो ऑक्टाहेड्रल के केस में था, ऊपर 3/5 था, नीचे 2/5 था। अगर हम टेट्राहेड्रल का केस देखेंगे तो ऊपर 3/5 होगा, नीचे ऊपर 2/5 होगा, नीचे 3/5 होगा, ठीक है। dx² y², यहाँ से उल्टा शुरू हो रहा है, यहाँ से ऊपर से dxy dyz dzx dx² y² एंड dz², ठीक है। ये E, ये T2G। देखिए, फॉर द सेम मेटल द सेम लिगेंड इन मेटल, लिगेंड डिस्टेंसेस डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ होता है। कॉन्सिक्वेंटली जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग, देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। On this channel, we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel, Learning Point. Thank you.